کی بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے سرد موسم کی۔ لاہور کولڈ باکس بن گیا، شہر منجمد، پارا 6 ڈگری کو چھو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں سرد موسم کے حوالے سے، تو لاہور کولڈ باکس بن گیا، شہر منجمد ہو گیا، پارا 6 ڈگری کو چھو گیا۔ خشک سردی سے گلے اور سینے کے امراض میں اضافہ ہونے لگا۔ شدید دھند کے باعث ایسٹرن بائی پاس اور رنگ روڈ پر بھی بند، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ لاہور کولڈ باکس بن گیا، شہر منجمد، پارا 6 ڈگری کو چھو گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، بڑے اسپتالوں کا بوجھ بانٹنے کا منصوبہ ناکام، 5 علاج گاہیں بابو افسران کے رحم و کرم پر، 5 ٹیچنگ اسپتالوں کو واپس پرانے محکمے میں پھینکنے کا فیصلہ، ڈاکٹر ملے نا سہولیات، سید مٹھا اور نواز شریف اسپتال کاغذوں میں ٹیچنگ نکلے، میاں منشی، کوٹ خواجہ سعید اور شادرہ اسپتال کا مستقبل داؤں پر لگ گیا، 5 اسپتالوں کو ٹیچنگ کا درجہ تو دے دیا گیا، انتظامیہ چلانا بھول گئی، محکمہ صحت 5 اسپتالوں کو دوبارہ بطور DHQ اسپتال چلائے گا۔ بڑے ہسپتالوں کا بوجھ بانٹنے کا منصوبہ ناکام، 5 علاج گاہیں بابو افسران کے رحم و کرم پر، 5 ٹیچنگ ہسپتالوں کو واپس پرانے محکمے میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو شہر کے 5 چھوٹے ٹیچنگ ہسپتال چلانے میں مشکلات درپیش ہیں۔ گورنمنٹ سید مٹھا سکول، نواز شریف ہسپتال، یکی گیٹ، میاں منشی ہسپتال، کوٹ خواجہ سعید ہسپتال اور شادرہ ٹیچنگ ہسپتال شامل ہیں۔ 5 علاج گاہوں کو ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دیا گیا، لیکن اپ گریڈ نہ ہو سکے۔ 5 علاج گاہوں کو ٹیچنگ کیڈر کے ڈاکٹرز تک نہ مل سکے۔ ٹیچنگ کا درجہ ملنے پر ہسپتالوں میں محکمہ صحت نے کنسلٹنٹ بھی فراہم نہ کیے۔ 5 ہسپتالوں کو دوبارہ محکمہ صحت کے سپرد کر کے بطور DHQ ہسپتال چلایا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سرکاری نوکری یا خزانے کی چابی، مریم نواز آٹزم سینٹر میں لاکھوں روپے تنخواہوں کی برسات، پرنسپل کو ماہانہ 15 لاکھ روپے تنخواہ کی شاہانہ پیشکش، وائس پرنسپل کو 10 لاکھ روپے ملیں گے، نرسوں کو بھی لاکھوں روپے دینے کا اعلان، گرین ٹاؤن آٹزم سینٹر میں لاکھوں کے پیکج پر بھرتیاں شروع، آٹزم سینٹر کے ایک پرنسپل کی تنخواہ درجنوں ملازمین کے برابر ہوگی، بھاری بھرکم پیکج نے سب کو حیران کر دیا۔ مریم نواز سینٹر آف ایکسیلنس فار آٹزم ٹاؤن گرین ٹاؤن کے لیے بھاری تنخواہوں پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ پرنسپل 15 لاکھ روپے ماہانہ اور 2 وائس پرنسپل 10 لاکھ روپے ماہانہ پر رکھے جائیں گے۔ ڈیولپمنٹ بیہیویئر آفیسر 2,85,000 روپے ماہانہ پر رکھا جائے گا۔ 2 چارج نرس، 2 لائف سکلز کوچ کو 1-1 لاکھ روپے ماہانہ پر رکھا جائے گا۔ ڈرائیور، کک، کنڈکٹر، ہاؤس کیپنگ، سیکیورٹی گارڈ اور دیگر عملے کی تنخواہیں بھی ہزاروں روپے میں رکھی گئی ہیں۔ بھرتی کے لیے ہزاروں امیدواروں نے درخواستیں محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کو جمع کروا دیں۔ درخواستوں کی اسکروٹنی کے بعد شارٹ لسٹ امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہوریوں کے لیے مفت بسنت پیکج تیار، بسنت پر 3 دن کے لیے مفت سواری کا تحفہ، پبلک ٹرانسپورٹ کے بعد رکشہ بھی مفت ہوگا، لاہور کی سڑکوں پر 10,000 فری رکشہ دوڑیں گے، بسنت کے 3 دن تک رکشہ ڈرائیور آپ سے کرایہ نہیں مانگیں گے، ٹیکسی کمپنیوں کا 10,000 رکشے مفت چلانے کا اعلان۔ بسنت پر لاہوریوں کی موجیں لگ گئیں، شہر بھر میں مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق شہر بھر میں 10,000 رکشے مفت سفر کے لیے دستیاب ہوں گے، جن کی فراہمی کے لیے ینگو اور ان ڈرائیو کے ساتھ معاہدے پر پیش رفت جاری ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں کمپنیاں 3 دنوں کے لیے رکشے فراہم کریں گی۔ اس کے بدلے بسنت کے دوران مفت اشتہاری مہم چلائی جائے گی۔ رکشے شہر کے مختلف علاقوں میں دستیاب ہوں گے اور شہریوں کو آن لائن رائڈ بک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ کہیں سے بھی رکشے میں سوار ہو کر شہر میں سفر کر سکیں گے۔ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی مفت دستیاب ہوگی، جبکہ ڈویژن کے دیگر اضلاع سے لاہور کے لیے بھی مفت بسیں چلائی جائیں گی۔ حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد موٹر سائیکل کے استعمال کو کم سے کم کر کے ٹریفک دباؤ اور حادثات میں کمی لانا ہے۔ محمدی محلہ وسن پورہ کے مکین صاف پانی کی عدم فراہمی کے خلاف سراپا احتجاج، 4 ماہ قبل علاقے میں نئے ٹیوب ویل کی تنصیب کا کام شروع ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں رومیل الیاس سے۔ جی رومیل، بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ وسن پورہ کے علاقے محمدی محلہ میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں کے مکینوں کو گزشتہ 4 ماہ سے پانی کی عدم فراہمی کا سامنا ہے اور پانی کی قلت کے باعث لوگوں کی جو روزمرہ معمولات زندگی ہے وہ مفلوج ہو کر رہ چکی ہے، اور جو انتظامیہ ہے وہ شکایات کے باوجود انہیں درپیش مسائل حل کرنے میں ناکام ہے۔ اس حوالے سے علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے، یہ ان سے بات کر کے جانیں گے۔ بتائیں جی، 4 ماہ سے وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ آپ کو پانی کی جو فراہمی ہے وہ معطل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، گزشتہ 4 سال سے یہاں پر ایک نیا ٹیوب ویل بنا رہے ہیں، اور وہاں پر 1-2 مزدور لگتے ہیں، کبھی نہیں آتے، کبھی ایک مستری آ گیا، کبھی ایک مزدور آ گیا۔
अब 4 माह से हमारे घरों में पानी नहीं है, हम पानी की एक एक बूंद को तरस गए हैं। इलाके की मसाजिद से जहाँ पर बोर हुआ है वहाँ से हम पानी लेकर आते हैं और अपने घर का मामला चलाते हैं। हम कपड़े नहीं धो सकते, नहा नहीं सकते। अगर हुकूमत को ये पता है कि वो 6 माह में ये काम मुकम्मल करेगी तो कम से कम हमें मुतबादल पानी तो देना, ताकि हमें अपने रोज़मर्रा के मसाइल है जो उनको हल कर सकें। इलाके में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए जो पानी की पाइपलाइन है वो काट दी गई है मोहम्मदी मोहल्ले की, और 4 माह से ये जो इल्तवा का शिकार मंसूबा है इसकी वजह से लोगों को साफ़ पानी की किल्लत का सामना है। यहाँ के मकीनों का ये शिकवा है कि जब भी शिकायत के लिए जाते हैं वासा के ऑफिस तो आगे से टाल मटोल से काम लिया जाता है और अमली इक़दाम जो है वो नहीं उठाया जा रहा है। इंतहाई सुस्त रवि से मंसूबे पर काम जारी है। लोगों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुतलका दायरे के हुकाम नोटिस लें और ट्यूबवेल की तस्नीम। बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास अपडेट करने के लिए। लाहौर में गंदम की कीमत में तेजी, गंदम की फी मन कीमत में 100 से 150 रुपए का इजाफा। लाहौर में गंदम 5000 रुपए फी मन तक फरोख्त होने लगी। पाकवानपुरा समेत शहर के दीगर इलाकों में गंदम की किल्लत, चक्कियों पर आटा 140 से 170 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लाहौर में गंदम की कीमत में तेजी आ गई। फी मन गंदम की कीमत में 100 से 150 रुपए तक इजाफा हो गया। 100 से 150 रुपए इजाफे से लाहौर में गंदम की कीमत 5000 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। बागबानपुरा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की किल्लत का भी सामना है, जिसके बायस आटे की कीमतों पर बराह रास्त असर पड़ा है। चक्की मालिकान के मुताबिक शहर की मुख्तलिफ चक्कियों पर आटा 140 से 170 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। आटा फरोशों का कहना है कि गंदम की अदम दस्तयाबी और कीमतों में इजाफे के बायस आटे के नर्ख मजीद बढ़ने का खदशा है। इससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत गंदम की किल्लत और कीमत कंट्रोल करे। डिजिटल पंजाब की तरफ बड़ा कदम। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में पाकिस्तान का पहला हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार। इलेक्ट्रिक बसों की लाइव लोकेशन और कैमरा मॉनिटरिंग का आगाज। बस कहाँ है, ड्राइवर क्या कर रहा है, सब कुछ एक क्लिक पर होगा। बस मुसाफिर की हर नकलो हरकत रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द जदीद कमांड सेंटर का रिबन काटेंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक जदीद और हमागीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फाल कर दिया है, जो पाकिस्तान में अपनी नवयत का पहला ट्रांसपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के हमदर्द चौक टाउनशिप में वाक़ सदर दफ्तर के अंदर कायम किया गया है। इस कमांड सेंटर के जरिए 19 अजला में चलने वाली सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसों की लाइव लोकेशन, कैमरा फीड और ऑपरेशनल सरगर्मियों की बराह रास्त निगरानी की जा रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौसर खान का कहना है कि ड्राइवर्स और मुसाफिरों की हरकत और सकनात, सफर करने वालों और मुफ्त सफर से मुस्तफीद अफराद का मुकम्मल डाटा जदीद डैशबोर्ड पर दस्तयाब है। इसमें ना लाइव ट्रैकिंग होती है बसेस की। बस किस रूट पे जा रही है, किस जिले में किस रूट पे बस चल रही है, उसको लाइव यहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि हर बस में इंटरनेट मौजूद है, वो हमारे से लिंक्ड है, तो उसकी लाइव लोकेशन आती है। सेकेंडली, सीएम पंजाब की ये पहली तरजीह है कि इसमें खवातीन और जो भी सफ़र करने वाले लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, तो सीसीटीवी लाइव कैमराज यहाँ पे मौजूद है। सीईओ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी कौसर खान का कहना है बसें जदीद और स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए हर बस में लाइव कैमरा मॉनिटरिंग का निजाम फाल है। हमारी हेल्पलाइन है 1782, तो उस पे हमें बताया जा सकता है कि अगर किसी के पास कोई हरासमेंट का इंसिडेंट आए, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए इसमें ना बहुत डेटा है, ये कम से कम 20 to 24 आवर्स का हम लोग इसमें सेव कर सकते हैं, तो वी कैन ऑलवेज हैव एक्सेस कि पुराना पिछले दिन के डेटे में कितने लोगों ने सफ़र किया, कोई ऐसा वाक़या हुआ तो नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास कोई ऐसी वाक़या, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई है जिसमें किसी खातून को हरासमेंट का सामना करना पड़ा। मंसूबा सिर्फ 5 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जल्द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। कैमरामैन अहमद अली के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। टीपा का दाता दरबार के सामने ट्रैफिक रिमॉडलिंग का मंसूबा। 3 रोया अंडरपास शामिल करने का मेगा प्रोजेक्ट। टीपा ने 1 अरब से ज़ायद लागत पर मुश्तमिल टेंडर जारी कर दिया। अंडरपास को 4 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। आज़ादी चौक से आई ट्रैफिक को लोहरवाल कचहरी चौक की जानिब सिग्नल फ्री रसाई मिलेगी। टीपा का दाता दरबार के सामने ट्रैफिक रिमॉडलिंग के मंसूबे में 3 रोया अंडरपास शामिल करने का मेगा प्रोजेक्ट। टीपा ने 1 अरब से ज़ायद गया है।
लेस्को का न्यू कनेक्शन के लिए अरबों रुपए की लागत से AMI सिंगल फीस स्मार्ट मीटर्स खरीदने का फैसला। 2,40,000 मीटर्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई। उधर लेस्को का सार्फिन से वाजिबात की वसूली का निज़ाम वन लिंक पर मुंतकिल करने का फैसला। लेस्को ने न्यू कनेक्शन के लिए अरबों रुपए की लागत से AMI सिंगल फीस स्मार्ट मीटर्स खरीदने का फैसला कर लिया। 3.5 अरब रुपए की लागत से 2,40,000 मीटर्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई। लेस्को में AMI सिंगल फीस मीटर्स की खरीदारी पर 3 अरब 50 करोड़ रुपए तक का बजट मुख्तस कर दिया गया। शोबा मटेरियल मैनेजमेंट ने AMI सिंगल फेस मीटर्स की खरीदारी शुरू कर दी है। लेस्को की जानिब से स्टॉक मिलने पर सार्फिन को डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। स्टॉक की फरामी पर सार्फिन को NOC जारी करने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। लेस्को ने सार्फिन से बिजली के बिलों की वसूली और मॉनिटरिंग का निजाम वन लिंक पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। कंपनी के आला अफसरान ने रिकवरी की शरह और फंड्स की वेरिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ तजावीज तैयार कर ली। कंपनी की जानिब से बिलों की रिकवरी के निजाम में जिद्दत लाने के लिए इकदाम शुरू किए गए हैं। जराये का कहना है कि वन लिंक सिस्टम में जमा होने वाले बिल्स की रकूम फौरी लेस्को के अकाउंट्स में मुंतकिल होंगी। वन लिंक की मदद से रिकवरी की शरह और फंड्स की मॉनिटरिंग में आसानी हो जाएगी। लेस्को को बिजली के बिलों की रकूम की वेरिफिकेशन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। जमा होने वाले बिजली के बिलों की रकूम को 3 मरतबा लेस्को के अकाउंट्स में मुंतकिल करना पड़ता है। लेस्को ने बिजली के बिलों की रिकवरीज के लिए नए निजाम पर काम शुरू कर दिया है। हुकूमत चाइल्ड लेबर के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर करेगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन की माली मुआवनत की जाएगी। बच्चों को मजदूरी से निकालने पर वालिदैन को मशरूत सपोर्ट देने का फैसला। वालिदैन की माली मुआवनत के साथ बच्चों को तालीम और तरबियत भी फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मुतासिरा बच्चों के वालिदैन के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर करने का फैसला किया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों को मजदूरी से निकालने पर वालिदैन को मशरूत कैश सपोर्ट फराहम की जाएगी। बच्चों को बाकायदा तालीम और फनी तरबियत दी जाएगी। चाइल्ड लेबर के खात्मे से मुतल्लिक टास्क कमेटियां कायम कर दी गई हैं, जिन्हें 20 से जायद जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और एक जामे प्लान तैयार किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने चाइल्ड लेबर के मौजूदा कानून में तरमीम के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली हैं। बच्चों की डिजिटल मैपिंग और जियो टैगिंग, खुसूसी हेल्पलाइन के क़याम और बहाली मराकज़ बनाने का भी फैसला किया गया है। हुकूमत का कहना है कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के तहत वालिदैन की माली मुआवनत और इन इक़दामात के नतीजे में हजारों बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत का स्टेट लैंड से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला। सूबे भर में गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी अराजी की नीलामी की जाएगी। सरकारी जमीन 10 से 20 साल के लिए तवील मुद्दती लीज पर दी जाएगी। लीज सिर्फ प्रोडक्टिव और मौशी सरगर्मियों के लिए होगी। सियाहत, इंडस्ट्री, ज़राअत और लाइफ स्टॉक सेक्टर को तरजीह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने स्टेट लैंड से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया है। सूबे भर में गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी अराजी की नीलामी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सरकारी जमीन 10 से 20 साल के लिए तवीलुल मुद्दती लीज पर दी जाएगी। लीज सिर्फ प्रोडक्टिव और मुआशी सरगर्मियों के लिए मुख्तस होगी। हुकूमती पॉलिसी के तहत सियाहत, इंडस्ट्री, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि निजी सरमायाकारी के फरोग के लिए शफाफ नीलामी पॉलिसी अपनाई जाएगी। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से सरकारी अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल के खात्मे में मदद मिलेगी। पॉलिसी के तहत सरकारी असासों का मौसर, मुनाफा बख्श और मुनज़्ज़म इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। खित्ते की बदलती सूरत हाल, लाहौर कराची के फ़ज़ाई रूट्स को 2 रोज़ मुख्तलिफ औकात में बंद रखने का फैसला। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की कड़ी निगरानी। पाक फ़ज़ाइया अलर्ट। लाहौर कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में जंगी तैयारों की मशकें। लाहौर कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के सेक्टर्स 14 और 15 जनवरी को बंद रहेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल, लाहौर कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स को 2 रोज़ मुख्तलिफ औकात में बंद रखने का फैसला किया गया है। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की कड़ी निगरानी जारी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया। नोटिम के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया मुकम्मल अलर्ट। लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में जंगी तैयारियों की मशकें की जाएंगी। लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के मुख्तलिफ सेक्टर्स 14 और 15 जनवरी को बंद रखने का फैसला किया गया। लाहौर और कराची की फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के मखसूस सेक्टर्स में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक फ़ज़ाई मशकें होंगी। कमर्शियल परवाजों को इस दौरान इंतहाई एहतियात की हिदायत की गई है। इस दौरान मखसूस फ़ज़ाई रूट्स की जगह मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 मुकम्मल। फ़ेज़ 2 पर तेज़ी से काम जारी है। मामूनी खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक और DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने कहा कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। टाउन हॉल में मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना बड़ा और बाकायदा प्लानिंग के तहत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है, जिसके तहत 5,500 गलियां मुकम्मल की गयी।
319 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई गई, 10 नए डिस्पोजल स्टेशन भी तामीर किए गए। मैं डीसी साहब, हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, एमपीएस एमएनएस, हम सब इसकी अगले हफ्ते से इनॉग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लाहौर में आपको एक ऐसा यानी कि एक माहौल मिलेगा, साफ़ सुथरी गलियां होंगी जिसमें पहली बार टफ पेवर वो लगाई गई हैं। तो इंशाल्लाह हम कोई अराउंड 20 जनवरी से इसको स्टार्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने कहा कि फेज 2 में 8000 गलियां शामिल हैं, जिनमें से 1500 गलियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, जबकि 4500 कच्ची गलियों को पक्का करने का काम जारी है। ये हमारा इनिशियल सर्वे में जो भी हमें सीवर के इशू से हमने केटर फार किए हैं, जो कच्ची गली थी हमने केटर फार की है। नंदलेस हमारे पास कहीं पे कोई रिपोर्ट होती है कि ये कच्ची गली जो है ये आपके सर्वे में मिस हुई है, वो हम उसे केटर फार कर रहे हैं एडिशनल स्कोप में। कहीं पे हमें सीवर रिपोर्ट होता है कि यहाँ पे मिस हो गया है, वो भी हम केटर फार कर रहे हैं। तो जिस तरह सीएम पंजाब का विजन है कि लाहौर में वी हैव टू मेक श्योर कि कोई ऐसा एरिया ना हो जहाँ पे कच्ची गली हो, जहाँ पे सीवर या वाटर सप्लाई का इशू हो। यही हमारा मोटो है, यही इस प्रोग्राम का मकसद है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमारा विजन है कि लाहौर में कोई भी गली कच्ची ना रहे। फेज 2 में 8000 गलियां शामिल हैं और हम इसे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करेंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा, ताहिर जमील खान, सिटी 42। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार सहू ने एप्टमा हाउस का दौरा किया। मरकजी चेयरमैन कामरान अशद, चेयरमैन नादिर जॉन और असद शफीक और दीगर मेंबरान से मुलाकात की। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए मौसम की सख्तियाँ झेलने वाला बीज और कॉटन पॉलिसी तश्कील देना होगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू ने दीगर अफसरान के हमरा एप्टमा हाउस का दौरा किया। मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद, चेयरमैन नार्दर्न जोन असद शफी, ताहिर बिशारत चीमा, सेक्रेटरी जनरल एप्टमा रजा बाकर और दीगर मेंबरान से मुलाकात की। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास आपको पता है कि जो फार्म साइजेज हैं वो बहुत छोटे फार्म साइजेज हैं, तो जो उनकी इकोनॉमिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू अ मीडियम, लार्ज एंड अ कॉर्पोरेट फार्म, क्योंकि उसने वो क्रॉप की तरफ जाना है जिस क्रॉप की तरफ उसको प्रॉफिटेबिलिटी है। उसने इस चीज़ को नहीं सोचना कि इसके अंदर किस हद तक नुकसान होगा, और ये सिर्फ एक क्रॉप नहीं है, ये आपकी पूरा मैं समझता हूँ इकोनॉमिक रिवाइवल है। मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एनर्जी रेट्स, शरह सूद के मसाइल के साथ कम होती हुई कॉटन की पैदावार का सामना है। इज्तिमाई एक्सपोर्ट जो ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन से बड़ी, उसमें बिगेस्ट गेन टेक्सटाइल ने ला के दिया। तो वो ये शो करती है कि टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जो टफ टाइम्स में भी परफॉर्म करके दिखाता है। एंड पाकिस्तान के पास चूँकि कंप्लीट वैल्यू चेन है, तो इसको फेडरल गवर्नमेंट को और मैं समझता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा टैक्स कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अर्नर है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। एप्टमा कायदीन ने कहा कि भारत पर टैरिफ और बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम का फायदा पाकिस्तान को हुआ, मगर फिर भी इंडस्ट्री मसाइल की वजह से एक्सपोर्ट को खातिर ख्वाह हद तक ना बढ़ा सकी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। MPO पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद की पाकपानपुरा में बल्दियाती नुमाइंदों से मीटिंग, तरक्याती फंड्स के हवाले से ब्रीफिंग थी। मीटिंग में मलिक शहबाज, चौधरी मतलूब जट, चौधरी गुलफाम जट, चौधरी इकराम, राना बशारत, राना शकील और मलिक अनवर ने शिरकत की। MPO पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक कोई भी गली कच्ची नहीं रहेगी, तमाम खस्ता हाल गलियों को पक्का किया जाएगा। स्टेज अदाकार कैसर पिया ने अपना फ़ोन बरामद कराने के लिए IG पंजाब से अपील कर दी। पुलिस को मुल्ज़मान की निशानदही करा दी। मोबाइल फ़ोन जल्द बरामद कराया जाए। कैसर पिया ने यह अपील की है। तफसीलात जानते हैं जैन मद्दी से। जी जैन, बताइएगा। इसमें मौजूद है स्टेज, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार, कॉमेडियन, राइटर, डायरेक्टर कैसर पिया साहब। और कैसर पिया साहब के साथ दूसरी मरतबा, बल्कि मैं यही कहूँगा कि 1 साल पहले भी मोबाइल गया था और पुलिस ने जो है वापस किया था, और फिर मोबाइल जो है, और वो भी iPhone 70 Pro Max। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए हुआ क्या मामला, कैसे? ये मदनी भाई, मैं तो बड़ा अल्लाह की मेहरबानी से जिस तरह हमारी CCD काम कर रही है, हमारी पुलिस काम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, मैं तो बड़ा खुश हूँ, अभी भी खुश हूँ। ये थोड़े छोटे मसले तो बंदे के साथ हो जाते हैं, क्योंकि जितना सुकून था, लेकिन अब ये था ज़हन में कि ऐसा वाकया हो ही नहीं सकता पंजाब में, खासकर जिस तरह मरियम नवाज साहबा ने जो किया था। तो मैं इजीली अपना जिस तरह फोन सीट पे रखा हुआ है, मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे, तो रिकॉर्डिंग से निकला हूँ मैं गपशप की, तो एक बंदा मेरे साइड वाले जो
لیفٹ میں ہے نا جو مرر اس پہ لگا ہے وہ الٹا ہو گیا. وہ لگا ہے تو میں نے شیشہ نیچے کر کے کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا یار. تو ادھر سے ایک بندہ نوک کر رہا ہے میرا شیشہ. میں کیا ہوا؟ کہتے وہ کوئی نیچے آ گیا. میں نیچے دیکھنے گیا ہوں. وہ میں نیچے گیا ہوں وہ اوپر سے فون لے کے چلا گیا. تو میں نے دیکھا وہ پیچھے کو بھاگے ہیں دونوں. یہ پیچھے بھاگ کے تو میں بڑا ایزیلی تمبل میں نہیں باہر نکلا. میں نے کہا کہ میں باہر نکلوں میری گاڑی میں نہ لے جائے. جس طرح آج کل یہ واقع ہو رہا ہے نوسر بازی جو ہو رہی ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ لاہور میں کیسی ہوگی. یہ تو ہم تو بڑے ہیپی ہیں. پھر میں نے کیا 15 کو فون. لیکن 15 نے مجھے حیران کر دیا, پریشان کر دیا کہ 3 سے 4 منٹ میں پولیس آ گئی. انہوں نے مجھے ڈی آئی جی کے آفس سے کال, مجھے ایس ایس پی کے آفس سے کال, ایس ایچ او صاحب میری گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ کے آگے تک. پھر ہم نے کیمرے چیک کیے. پھر بندے ٹریس وہ بھاگتے نظر آ گئے. تو انشاءاللہ مجھے اپنی پولیس پہ مان بھی ہے, اپنی گورنمنٹ پہ بھی اور سی سی ڈی پہ بھی. کیسر پیا کی ریکویسٹ ہی ہے, انہوں نے اپیل کی ہے آئی جی پنجاب سے کہ ان کا فون جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈھونڈ کے دیا جائے. بہت شکریہ زین متنی اپڈیٹ کرنے کے لیے. جوہر ٹاؤن میں ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب کے تحت انتخابات 2026-27 کا انعقاد. 2 گروپ شاہین اور ٹائیگرز سامنے رہے. شاہین گروپ کی جانب سے عامر نواز خان جبکہ ٹائیگرز گروپ سے محمد عباس اشرف چیئرمین کے عہدے کے لیے مد مقابل ہیں. وائس چیئرمین کے نشست پر محسن اقبال اور رانا محمد مرتضیٰ کے درمیان مقابلہ ہوا. صدر کی سیٹ پر محمد بنشا اور ظفر علی سیال کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا. مجموعی طور پر 13 نشستوں کے لیے 26 امیدوار میدان میں اترے. 300 سے زائد افراد نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. دونوں گروپوں کی جانب سے کامیابی کی امید ظاہر کی جا رہی ہے. امیدواروں کا کہنا ہے کہ جو بھی کامیاب ہوا وہ یونین کی بہتری اور ملازمین کے حقوق کے لیے مل کر کام کرے گا. ہوم اکنامکس یونیورسٹی شعبہ ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائن کے زیر اہتمام طالبات کا تھیسس ڈسپلے. نمائش میں طالبات نے مختلف ٹیکنیکس اور رنگوں کے امتزاج سے خوبصورت انداز میں ٹیکسٹائل کے شاہکار پیش کیے. ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں فائنل ایئر کی طالبات کے تھیسس نمائش شعبہ ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائن کے زیر اہتمام منعقد ہوئی. نمائش میں 61 طالبات نے اپنے تخلیقی اور نمایاں تھیسس پروجیکٹس پیش کیے. ڈیک کارڈز حتیٰ کہ سب کھیلتے ہیں, پلے ایزا کرتے ہیں, لیکن اس کو کبھی کسی نے چینجز لائے ہی نہیں کوئی. تو سر میں اس لیے اس کو چینجز لے کر آئی ہوں. میں ان کے کنگ, کوئین اور جیک میں اپنے پولیٹیشنز ایڈ کیے ہیں اور 4 پروونس کے ساتھ جو جس کے پولیٹیشنز ہیں ان کو انکلوڈ کیا ہے. میرا جو تھیسس ہے وہ بیسکلی لوٹس فلاور سے انسپائرڈ ہے. میں نے اس سے انسپریشن لیا. اس کا انوائرمنٹ بھی بہت نیگیٹو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے جیسا مرضی آپ کا انوائرمنٹ ہو, اگر آپ خود پازیٹیو ہو آپ کا امپیکٹ پازیٹیو ہوگا. میرے 2 پروڈکٹس ہیں, ان میں پینلز ہیں 2 اور 2 میرے ڈریسز ہیں. اور اس میں میں نے جو ٹیکنیکس یوز کی ہیں اس میں مشین امبرائڈری ہے اور فیبرک پینٹنگ ہے, ہینڈ امبیلشمنٹ ہے اور 3D پیٹرنز کا میں نے اس میں اس کو انہینس کرنے کے لیے زیادہ یوز کیا ہے. طالبات نے جدید فیشن, ٹیکسٹائل, انٹیریئر اور گرافک ڈیزائن کے نمونے پیش کیے. نمائش سپروائزر نوشین زیدی کے مطابق طالبات کے پروجیکٹس جدت اور ویژن کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں. یہ بچے خود بڑے محنتی تھے. الحمدللہ آج کل کے دور میں محنتی بچے ملنا بھی ٹیچرز کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. اور یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں ہمیشہ بڑے میرٹ پر اور بڑے اچھے بچے آئے ہیں. اور اس کا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس نمائش سے کہ جس طرح کا کام انہوں نے پروڈیوس کیا ہے وہ مارکیٹ لیول کا کام ہے. اور بہت سارے بچوں کے کام اس وقت پہلے اور دوسرے دن کی نمائش میں ہی سیل ہو رہے ہیں. وائس چانسلر ڈاکٹر زیب النساء کے مطابق انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جیوری ممبران نے طالبات کے پروجیکٹس کا جائزہ لیا اور طالبات کی تخلیقی سوچ, پیشکش اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. میں افتخار حسین کے ہمراہ عمران یونس, سٹی 42. پنجاب فٹ بال اکیڈمی اور صومالیہ فٹ بال کلب کے مابین 3 میچز کی سیریز کا آغاز ہو گیا. افتتاحی میچ میں صومالیہ کے فٹ بالرز نے میدان مار کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی. پنجاب اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پاکستان میں مقیم صومالین فٹ بال کلب اور پنجاب فٹ بال اکیڈمی کے مابین سیریز کا پہلا میچ مہمان کلب نے 2-0 سے جیت لیا. پہلے ہاف میں میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. دوسرے ہاف میں صومالیہ کے فٹ بالرز نے 2 گول سکور کیے. سیکٹری سپورٹس پنجاب محمد علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. سیکٹری سپورٹس کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ سے نوجوانوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ دونوں ٹیمز جو ہیں یہاں کافی دن سے پریکٹس بھی کر رہی تھیں اور یہ یہاں پر جو صومالی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں ان کا کلب ہے, ان کا ہماری پنجاب جو یہاں ٹیم ہے فٹ بال کی اس کے ساتھ ان کا میچ ہو رہا ہے. 3 میچ جس طرح آپ نے بتائے ہیں, تو یہ سیریز ہو رہی ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں
फुटबॉल का जो शौक़ है वो बढ़ेगा। आपने देखा काफ़ी सारे बच्चे यहाँ आए हुए हैं ये मैचेस देखने के लिए भी। पंजाब फुटबॉल एकेडमी के कप्तान और सोमालियन क्लब के कप्तान का कहना था कि मैच का इनेकाद खुशाइंद है। हम नर्सरी लगा रहे हैं, इंशाल्लाह ये फल फूलदार दरख्त भी बनेंगे और फल भी देंगे। इसका फ़ायदा यही है कि आज लोग देखने आए हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये बच्चे बुरी सोबतों से निकल के पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ आए। हमारा मकसद यही है। You know, Lahore culture is very beautiful, very interesting. So I have been in Lahore in almost 5 years. So I almost enjoyed it a lot. दोनों टीमों के मबैन तीनों मैच की सीरीज के बकिया 2 मैचेस 15 और 16 जनवरी को खेले जाएंगे। सीरीज की फातेह टीम को ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा राना आजम नूर, सिटी 42। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओवल ग्राउंड में वाइस चांसलर 11 बमुकाबला ओल्ड रावियन यूनियन 11 में T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद करवाया गया। सदर ओल्ड रावियन यूनियन अतहर इस्माइल और वाइस चांसलर डॉक्टर उमर चौधरी की टीमों के दरमियान मैच बराबर रहा। तलबा मैच से खूब लुत्फ अंदोज हुए। मादरे इल्मी से फारिगुल तहसील तलबा का लगाव काबिल दीद होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब ओल्ड रावियंस और यंग रावियंस के दरमियान क्रिकेट मैच का इनेकाद हुआ। दोनों टीमों का ग्राउंड में बैंड से इस्तकबाल किया गया। साबिक क्रिकेटर आमिर सुहेल, अदाकार खालिद अब्बास डार, गुलकार हामिद अली खान समेत बड़े पैमाने पर ओल्ड रावियंस ने शिरकत की। ओल्ड रावियंस यूनियन 11 की क़यादत RPO शेखुपुरा अतहर इस्माइल ने की, जबकि सलीम मलिक, अलीम डार समेत सीनियर प्लेयर्स ने शिरकत करते हुए मैच की पहली इनिंग्स में 206 का बड़ा हदफ दिया, जिसमें कप्तान अतहर इस्माइल के धुआंधार 46 रन भी शामिल हैं। ये मौका है रिकनेक्ट करने का, ये मौका है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो हमारी सारे ओल्ड रावियंस की मादरे इल्मी है उनको दोबारा एक जो ताल्लुक़ है उसको ज़िंदा करने का, और हमारी कोशिश है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ओल्ड रावियंस के यूनियन के चैप्टर्स खोले जाएं। दूसरी इनिंग्स में वाइस चांसलर 11 डॉक्टर उमर चौधरी, वाइस चांसलर GCU ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। मोहम्मद अयाज ने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए सेंचुरी स्कोर की। आखिरी 3 गेंदों पर 13 रन दरकार थे, लेकिन वाइस चांसलर 11 12 रन बना सकी और मैच बराबर रहा। ये जो आज हमारे बच्चे और हमारी जो है वो टीम के लोग खेलेंगे तो इंशाल्लाह अगले कुछ साल के बाद शायद ये भी जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जो मकसद है इस फेस्टिवल का वो सिर्फ एक कनेक्शन है ओल्ड रावियंस में और करंट रावियंस में। मैच के इख्तिताम पर साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने प्लेयर्स में इनामात तकसीम किए और दोनों टीमों को ट्रॉफी दी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अली साही, सिटी 42। NCA विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन फाइनल ईयर के तलबा के थीसिस नुमाइश के लिए पेश किए गए। नुमाइश में फाइनल ईयर के 34 तलबा ने मुख्तलिफ माशरती मुआशी मसाइल, वुमेन एम्पावरमेंट समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल और विजुअल आर्ट के शानदार शाहकार पेश किए। शुरका ने तलबा के काम को बेहद सराहा और नए टैलेंट को इंडस्ट्री में बेहतरीन इजाफा करार दिया। थीसिस का प्रोजेक्ट है नेम्ड कुले आहन। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की कैंपेन है। एज यू कैन सी 7 सीरीज़ पोस्टर्स हैं। एक जो हमारी स्टीरियोटाइपिंग चलती आ रही है, औरत फूल है, फूल औरत है, उसका एक सिंबल बना दिया कि फूल एक औरत है। उसको ख़त्म करने के लिए इसको मैं माइक्रो लेवल पे लेकर आई हूँ। सेकेंड ऑफ ऑल ये जो सीरीज़ के पोस्टर्स के सबके नाम ये हैं कि हया है तो खामोशी है, खामोशी है तो नरमी है, नरमी है तो नाजुकी है, नाजुकी है तो एहसास है, एहसास है तो जुर्रत है, एंड द फाइनल स्टेज बका, बका मीन सर्वाइविंग पॉइंट। औरत हर पॉइंट पे सर्वाइव करती है। इससे होता ये है कि ये जो वर्ड्स हैं ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है हमारी पाकिस्तान सोसाइटी में, कि ये अगर वर्ड हमारी सोसाइटी में एक लड़की में ना पाए जाए तो हम कहते हैं ये औरत औरत है ही नहीं है, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। इसमें से एक चीज़ भी लैक नहीं करनी चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।